کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ پیغام ٹیلی ویژن جو بدل دے زندگی۔ معزز خواتین و حضرات، اس لوگوں کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پیغام ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام پیغام صحت آپ تک بہتر رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ صحت کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ غذا ہماری زندگی کا لازمی جزو ہے اور غذا کے بغیر ہماری گروتھ متاثر ہوتی ہے۔ صحت مند غذا کیا ہے، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا ہماری زندگی میں رول کیا ہے اور ہم کس طرح سے صحت مند زندگی بہتر غذا کے ساتھ گزار سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے بہت ہی محترم، ہمارے پیارے حکیم مبشر علی حسن صاحب۔ اب فاضل طب والجراحت ہیں، اس کے علاوہ فاضل علوم اسلامیہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معزز خواتین و حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ 7 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ بہت پیارے میرے دوست ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حکیم اللہ۔ صاحب کیا حال آپ کا؟ اللہ کی رحمت محترم ڈاکٹر صاحب خیر مجھے وفیت۔ بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ۔ بہت مہربانی، حکیم صاحب بہت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، آپ کی دعوت دینے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حکیم صاحب ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ غذا کے بارے میں ہم بات کریں گے، جی اور ڈیفینیٹلی غذا آپ کا بڑا ہی مرغوب ٹاپک بھی ہے۔ جی جی۔ تو مجھے یہ بتائیں، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہترین غذا کا ذکر میں کر رہا ہوں، جی جی کہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کا دعوت دینے کا شکریہ، بہت مہربانی، جزاک اللہ خیرہ۔ تو جو بہترین غذا ہے اس کے لیے تو اللہ کریم نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ اسراف۔ اب جو غذا ہے اس کے بارے میں کہ ایک غذا میں اچھی چیز کیا ہے، سب سے اچھی چیز وہ ہے جو خود نبی علیہ السلام نے غذا استعمال فرمائی، بے شک، یقین، صحابہ کرام نے استعمال کی، آگے اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین یہ استعمال کرتے ہیں، وہ سب سے بہترین غذا ہے۔ جب ہم ان کی غذا پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے اس میں چیز کھجور ہے، ان کی غذا میں انگور ہے، ان کی غذا میں زیتون ہے، ان کی غذا میں دودھ ہے، دیسی گھی ہے، یہ بہترین غذا ہے۔ اور گوشت، یہ آج بھی اچھی ہے اور قیامت تک اچھی رہے گی، صحیح۔ جو آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے مختلف غذاؤں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ آج کل ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ہمارے ہاں غذا کو پکانے کا بڑا رواج ہے، ہمارے ہاں غذا کو مختلف قسم کے پروسیس سے گزارنے کا بڑا رواج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں غذائیں بڑی سادہ سی ہوتی تھیں، سادہ سی سبزی، سادہ سا گوشت، آلو گوشت پک گیا، بھنڈی پک گئی، ہمارے ہاں ٹینڈے پک گئے، ہمارے ہاں فلاں پک گیا۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ برگر کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ پیزا کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ریپ کیا چیز ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ڈاکٹر حکیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ غذا آپ نے ذکر کی سادہ، اور اس میں ہمارے ہاں گرمیوں کا موسم ہے، اور آج کل ڈیفینیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ خاصی گرمی پڑتی ہے، اور مہمان جب آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ان کے لیے تواضع کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس تواضع میں ہم مختلف قسم کے مشروبات، ہم مختلف قسم کے بیوریجز، سافٹ ڈرنکس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کس حد تک درست عمل ہے اور ہماری صحت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب محترم، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں ان کا ذوق کیسا ہے اور موسم کیسا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ سردیوں میں آ رہے ہیں تو گرم مشروبات دیں گے، اگر وہ گرمیوں میں آ رہے ہیں تو سرد مشروبات، ٹھنڈے مشروبات دیں گے۔ صحیح۔ لیکن فی زمانہ جو لوگ گرم مشروبات کی طرف کم ہو گئے، سرد مشروبات کی طرف زیادہ ہو گئے۔ اچھا۔ اور ان کا نقصان بھی ہے۔ گرم مشروبات میں جو 2-3 چیزیں دیتے ہیں، ایک تو چائے ہے یا کافی ہے۔ اب چائے اور کافی میں جو کیمیکل پایا جا رہا ہے کیفین، جو آدمی چائے یا کافی استعمال کرتا ہے اس کے معدے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ دماغ کے پردے پہ سوزش کرتی ہے اور آدمی کو اس کا عادی بنا دیتی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد
फिर आदमी के मैदे में तदाबियत बढ़ने लग जाती है, ऐसा है तो वो बवासीर का मरीज़ बन जाता है। हाँ। और यही मरीज़ उसकी आंखों में मोतिया उतर आता है और इसी मरीज़ को शुगर हो जाती है, फिर बाद में बवासीर भी हो जाती है। अच्छा तो चाय के तो ये नुकसान है। अच्छा। कोशिश अच्छा, किया कि इसी तरह कॉफ़ी से भी बचना चाहिए। इसके मुतबादल हमें करना क्या चाहिए? सही। इसके मुतबादल हमें देखना चाहिए कि अगर सर्दी का मौसम है तो हमें 3 दाने लौंग, 3 टुकड़े 1-1 इंच के दारचीनी हाँ। और उसमें 3 दाने मनक्का, हाँ। 1.5 कप पानी डाल के उसको एक जोश दे लिया जाए, फिर उसे छान के उसमें 1 चम्मच शहद मिला दिया जाए। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ये कहवा पिलाएं। अच्छा। उसकी सर्दी का इजाला भी होगा और उसके दिल और जिगर में कुव्वत भी पैदा होगी। अच्छा, ये आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। लौंग अगर देखा जाए तो मिजाजी एतबार से कहा जाता है कि ये गर्म होती है, और दारचीनी के बारे में भी यही कैफियत है, और मनक्का जी ये इसका मिजाज ये भी गर्म है। ये भी गर्म है। अच्छा, तो ये अगर हम मतलब गर्मियों में मेहमान आया है, हाँ, अगर मेहमान गर्मी में आया है तो उसका हल ये करना है कि हमने सौंफ, सब्ज़ इलायची, 2 चीज़ें, अगर उसमें कोई ज़ीरे का जायका पसंद करता है तो ज़ीरा भी मिला दे, यानी आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच ज़ीरा, 3 सब्ज़ इलायची, 1.5 कप पानी डाल के इसको एक जोश दे लिया जाए, फिर इसे छान के चम्मच शहद मिला दिया जाए तो ये बेहतरीन मशरूब तैयार हो जाता है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इसको ठंडा इस्तेमाल करना अब चाहिए? इसको आप पी तो गर्म रहे, लेकिन इसकी तासीर ठंडी है हाँ। और इसका नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो हकीम साहब, आने वाला मेहमान ये ख्याल नहीं करता कि यार इसने मुझे टरखा दिया और मतलब इस तरह की ग़िज़ा जो है, इस तरह का मशरूब मुझे पेश कर दिया? पहले उनकी ब्रेन वाशिंग करनी चाहिए कि हमें जो नुकसानदेह मशरूबात हैं उनसे बचना है। अच्छा, मतलब पहले हम उन्हें पूरा लेक्चर दें, उसके बाद उनको कहवा पिला दें। क्योंकि यकदम अगर उनको इस चीज़ से शिफ्ट करेंगे तो वो हो सकता है बुरा मनाए कि उन्होंने हमें चाय नहीं दी, कॉफ़ी नहीं दी। सही। हाँ, अलबत्ता कुछ मरीज़ बन चुके हैं चाय और कॉफ़ी के, जी। पी के उसके आदी बन चुके हैं। हाँ। उनकी ज़रूर रियायत रखें। अगर वो ऐसे आ रहे हैं तो उनको चाय और कॉफ़ी पेश कर दें। लेकिन अगर उन्हीं की इसी चाय के अंदर भी दारचीनी मिला दें, हाँ, और थोड़े से खुशबू के लिए दारचीनी और इलायची मिला दें, सही। बल्कि अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा अदरक मिला दें। मैं यही पूछने लगा था आपसे। दारचीनी, चाय की पत्ती और अदरक जी। तो इससे खुशबू भी अच्छी हो जाएगी और चाय के अंदर तासीर भी कुव्वत वाली बन जाएगी। अब उसका जो मनफी असर आ रहा है, नुकसान हो रहा है, वो भी कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हकीम साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो दारचीनी की अफादियत है, जी। हम लोग बहुत पढ़ते हैं, देखते हैं, जिन लोगों ने वेट गेन मतलब जिन लोगों ने वज़न गिराना होता है अपना, उनके बारे में कहा जाता है कि इसका सफ़ूफ आप इस्तेमाल कर लें। जिन लोगों के हाँ इम्यूनिटी को इन्हांस करना होता है, जिन्हें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना होता है, उन्हें कहा जाता है कि अदरक का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कर लें। और इसके अलावा आपने सब्ज़ इलायची की बात की है, तो ज़रा थोड़ा अफादियत, इनकी अफादियत के ऊपर भी आप थोड़ा रोशनी डाल दें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि इनकी अफादियत क्या है। डॉक्टर साहब, उसमें भी देखिए ना कि इम्यूनिटी जो इंसान की पैदा होती है, उसके लिए भी इंसान के अंदर 3 किस्म का मिजाज है। जी। एक मिजाज में इंसान को नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, केरा, खांसी रहती है, जी। जिसको आमतौर पे बलगमी मिजाज कहते हैं। जी। अगर इनकी इम्यूनिटी कम है तो इसके लिए लौंग, दालचीनी, मनक्का होगा। अच्छा, मतलब जिनका बलगमी मिजाज है और जिन्हें अक्सर औकात छींकियाँ आती हैं, बलगम की जुकाम लगा रहता है, सही, उसके लिए ये बेहतरीन है। दोबारा से बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं? लौंग 3 दाने, दालचीनी 3 ग्राम यानी 1 ग्राम के 3 टुकड़े, सही, और मनक्का उसमें 3 दाने, 3 से 7 दाने तक डाल सकते हैं। ठीक है। इसको 1.5 कप पानी डाल के एक जोश दे दें जी। फिर उसे छान के चम्मच शहद मिला दें। सही। अब नीम गर्म पिए, सुबह दोपहर शाम, इनकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतरीन हो जाएगी। नज़ला, रेशा, केरा, खांसी, ज़ुकाम से जान छूट जाएगी। ठीक है। अगर किसी आदमी को छींकी, सिंपल ज़्यादा छींकी आई जा रही तो उसके लिए है कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली बेहतरीन दुआ तुख्म मेथी। अच्छा, 1 चम्मच चाय वाला उसका कावा बना के पिला दें सुबह दोपहर शाम, तो छींकें भी रुक जाती हैं, ताकत भी बाहर। तुख्म मेथी की आपने बात की है, तो वो उसका तरीकाकार भी बताते हैं हमारे नाज़रीन। उसी का तरीकाकार इसी तरह ही कि 1.5 कप पानी में डाल के 1 चाय वाला चम्मच, अंदाज़ा है वो 3 ग्राम होगी, फुल भरा हुआ तो ज़्यादा हो जाएगी, बस पूरा सा हो। सही। तो 1.5 कप पानी डाल के एक जोश दे दें, फिर उसमें छान के चम्मच शहद मिला दें, वो नीम गर्म पी लें। ज़ुकाम, छींके जो बार बार आई जा रही हैं, वो आप 3 कप के बाद सुकून महसूस। अच्छा, चलें हकीम साहब, ये तो मतलब ऐसी चीज़ें हो गई कि जिनको हम बीमारी की हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम इनको सेहतमंदी की हालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम लोग इम्यून रहें इन बीमारियों से? हाँ, ये हर हाल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आया उसको भी पेश कर सकते हैं। और आजकल जैसे सीज़न चल रहा है, बरसात का मौसम है, इसके लिए अगर हमने ठंडा मशरूब उसके लिए पेश करना है तो हम 1 गिलास पानी में
1.5 चम्मच शहद मिला दें जी, और उसमें आधा लीमू निचोड़ दें सही, और चाय वाला चम्मच तीसरा हिस्सा नमक मिला दें। ये एक किस्म की सकंजबीन बन जाएगी अच्छा, और ये कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाएगी। सही, जिस्म के अंदर से जो निकलने वाले नमकियात उसका नेमल बदल भी यही है। और फ़रत भी बख्शेगी, वक्ती तौर पे सुकून भी रहेगा। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपने शहद का जिक्र बार बार किया है, लेकिन अगर शहद घर में अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पर हम मीठे के तौर पर कौन सी चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते फिर कोशिश करें कि ऐसी शक्कर मिल जाए, ऐसा गुड़ मिल जाए जिसके अंदर केमिकल ना मिलाया गया। हैं? अच्छा अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो चीनी से बहरहाल आम शक्कर भी बेहतर है। अच्छा हकीम साहब, अगर हम दूसरी गुफ्तगू करें ग़िज़ा के बारे में, जी जी। तो एक सेहतमंद इंसान के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है? हाँ, मुतवाज़न ग़िज़ा के लिए मोहतरम ऐसी है कि हफ्ते में आदमी 2 दिन गोश्त का इस्तेमाल करे, जी, 2 दिन सब्ज़ी का इस्तेमाल करे सही, और 2 दिन चने या दालें इस्तेमाल करें और 1 दिन चावल इस्तेमाल करें। अच्छा, पूरे हफ्ते में चावल जब वो एक दिन इस्तेमाल 1 दिन बस। और इसके साथ जो चीज़ ख्याल रखने वाली कि घी हमेशा देसी इस्तेमाल करें। जी, अगर उतना मौजूद नहीं या मिल नहीं रहा तो रोगने ज़ैतून उसका मुतबादल है। सही, अगर किसी को महंगा पड़ रहा है तो उसकी जगह पे सरसों का तेल आ जाएगा। सही, तो खुराक में चिकनाई के तौर पर ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करें। इसके सिवा जितने भी प्रोसेस किए हुए हमारे पास कुकिंग ऑयल हैं या डालडा की है, उन सबको छोड़ दें। अच्छा ठीक है। हकीम साहब, यकीनन ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के बारे में मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर हमें लेना एक वक्फ़ा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। हाज़िर होते हैं इस वक्फ़े के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में खुशामदीद एक दफ़ा फिर। जी हकीम साहब, ग़िज़ा के बारे में बातचीत हो रही थी, आपने 2 दिन गोश्त का जिक्र किया है। अब गोश्त की ज़रा थोड़ी सी फरमा दें कि कौन सा गोश्त, इसमें रेड मीट शामिल है, वाइट मीट शामिल है, बकरे का है, बड़े का है, मुर्गी का है, किस तरह का गोश्त? ज़रूरत देखिए डॉक्टर साहब, अगर आदमी मुशक्क़त करने वाला है ना और मेहनती आदमी, उसके लिए तो बड़ा गोश्त होना चाहिए। ठीक है। और जो आदमी दरमियाने दर्जे की मुशक्क़त काम करता है, थोड़ी सी रेस्ट है, थोड़ा सा काम है, वो अपना बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर ले। ठीक है। और जिसका काम सिर्फ बैठने वाला है, उसको देसी मुर्ग पे आना चाहिए या फिर वो मछली इस्तेमाल। अच्छा, वाइट मीट पे आना चाहिए। अच्छा, आपने जिक्र किया देसी मुर्ग का, और ये हमारे यहाँ जो आजकल ब्रायलर मिल रहा है, इसका एक सस्ता भी है, इजी अप्रोच में भी है, हर कोई ख़रीद सकता है, तो क्या ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? इसके कभी कभार तो आदमी इस्तेमाल कर ले, लेकिन इसका मुसलसल इस्तेमाल आदमी को शुगर का मरीज़, ब्लड प्रेशर का मरीज़, मैदे की सोजिश, अंतड़ियों की सोजिश, कई मसाइल में मुब्तला करते हैं। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जिस वक्त पकती हैं चीज़ें, इसके अंदर जो इसको फीड दी जा रही है, वो फीड का असर इसके अंदर मौजूद है, और जिसको भी देखा खा के या खिला के उसके अंदर नुकसान नज़र आए। अच्छा, आप समझते हैं कि जो इस वक्त मार्केट में मौजूद ब्रायलर है, हाँ, वो सेहत के लिए सेहत के लिए मुफीद नहीं। अच्छा, 2 दिन आपने दालों का जिक्र किया, 2 दिन आपने जिक्र किया गोश्त का, और 2 दिन सब्जियों का जिक्र किया, और एक दिन आपने चावल का। चावल भी जो हमारे यहाँ आम सफ़ेद चावल चलते हैं वो ना हो, वो चावल हों जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए, ऑर्गेनिक तरीके से फसल से हासिल किए गए। वो कैसे है? वो मुख्तलिफ बड़े बड़े स्टोरों पर बड़े बड़े डब्बे में पैक है, तो उसको ब्राउन राइस कहते हैं। अच्छा, वो चावल बना के खाएं, उसका कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं जी। किसी ने अगर वेट रिड्यूस करना है तो हाँ, वो चावल खा सकता है। ये जो वाइट वाले हैं, इनके अंदर आर्सेनिक आ रही है और वो गुर्दों में रुकता है और गुर्दे में सोजिश पैदा करता है, वो नुकसान करता है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था ग़िज़ा में देसी घी का। आमतौर पर ये कंसेप्ट रहता है कि जी घी इस्तेमाल करने वाले लोगों के जिस्म के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और उनके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, उनका HDL बढ़ जाता है, LDL बढ़ जाता है, हार्ट के इशूज़ आ जाते हैं, फलां आ जाता है। इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा नहीं, मतलब डॉक्टर साहब, मैंने अमलन अपने कई मरीज़ों को खिला के देखा है। अच्छा, देसी घी से ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ते, सही, ना उसमें कोई तदाबियत बढ़ती, बल्कि इन सारी चीज़ों का इलाज करता है। अच्छा, अब मसला यह है कि इसको खाने का, खिलाने का तरीका आना चाहिए। सही, कि आदमी क्या करते हैं कि गोश्त भी खा रहे हैं, साथ 4-4 नान भी खा रहे हैं, फिर से ज़्यादा देसी घी भी खा रहे हैं, अब उसको हज़म नहीं हो रहा। ठीक है, लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज नहीं, वर्जिश नहीं है, कोई एक्टिविटी और नहीं है, फिर ऊपर से गलत तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हैं। सही, अब वो नुकसान करेगा। ठीक है। तो इसके खाने का बेहतरीन तरीका यह है
کہ آدمی ناشتے میں کوئی 3 دیسی مرغی کے انڈے ہوں، اس میں 3 چمچ دیسی گھی ہو، اور اس کو پکانے کے لیے سبز مرچ، لہسن، پودینہ، کالا زیرہ، کسوری میتھی، قدرتی نمک، یہ ملا کے اس کو فرائی کر لیا جائے انڈے کو، انڈے کا آملیٹ بن جائے گا. صحیح ہے. دیسی گھی بھی چلا گیا، انڈے بھی چلے گئے، یہ استعمال کریں. اچھا ناشتے کا ذکر یہ ہو ناشتے رہا کا. ہے. اور اس کے اوپر بہترین فریش پودینہ اس کا کعوہ بنا لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کپ پانی ابال کے اپنے پاس رکھ لیں. جی. 3 ٹہنیاں جو جس کے ساتھ کچھ 6-7 پتے لگے ہوں وہ اس کے اندر ڈپ کر دیں، بھگو دیں اس کے اندر. اچھا گرم پانی کے اندر؟ ہاں گرم پانی کے اندر ڈال دیں. بوائلڈ پانی جو ہوتا ہے. ہاں ابلے ہوئے پانی کے اندر. جی. اب اس کے اوپر کوئی ڈھکنا دے دیں، کوئی چیز، تاکہ اس کی خوشبو نہ اڑے. ٹھیک 10 منٹ بعد اس کو نکال لیں. اب اس میں پھر چمچ شہد ملا دیں، نیم گرم پی لیں اس کو. اب جو 3 انڈے کھائے ہیں اور دیسی گھی چلا گیا، اوپر پودینے کا کعوہ پی لیا ہے. آپ 1 مہینہ کسی دل کے مریض کو کھلا کے چیک کر لیں. صحیح. جس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھے ہوئے ہیں، VLDL بڑھے ہوئے ہیں، LDL بڑھے ہوئے ہیں، اور HDL لو ہے. آپ مہینے بعد ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے کہ HDL بڑا ہوگا، باقی ساری چیزیں کم ہو جائیں گی. ساری چیزیں کم ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے گھی کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا اس کی اوور لوڈنگ کا. اچھا. کہ ضرورت سے زیادہ غذا کھائے. مطلب آپ جتنا کنزمپشن کر رہے ہیں اتنا آپ اس کو یوز میں نہیں لے کے آ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو غذا آپ انٹیک کرتے ہیں اس کو یوٹیلائز کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے خرچ کس طرح سے کرنا ہے. ورنہ دیسی گھی کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے کہ جسم کے اندر زخم ہو یا جسم کے باہر زخم ہو، صحیح، جتنی بھی سوجن ہے، سویلنگ ہے، سوزش ہے، ورم ہے، زخم ہے، یہ اکیلا ہی بند کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب، بات چیت چل رہی ہے تو اس میں پوچھنا چاہوں گا آپ کہ ہمارے اب دنیا پہلے نیچرل فوڈ سے پروسیسڈ فوڈ پر آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کو ڈبوں میں پیک غذا مل جاتی ہے، فلاں چیز مل جاتی ہے، فلاں مل جاتی ہے، فلاں چیز مل جاتی ہے. اور اس پروسیس فوڈ نے جیسے کہ دودھ بھی ہمارے ہاں ڈبوں میں پیک آنا شروع ہو گیا، ہمارے ہاں آرٹیفیشل گھی آ گئے، ہمارے ہاں آئل آ گئے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں سبزیاں پروسیسڈ ہو کے آنا شروع ہو گئیں، ہمارے ہاں گوشت جو ہے وہ پروسیسڈ ہو کے آنا شروع ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انسانی صحت جو تھی، لوگوں نے ویٹ جو تھا وہ پٹ آن کرنا شروع کیا، موٹے ہونا شروع ہو گئے، ایکسرسائز ہماری شہری زندگی میں کم ہو گئی، ایگزرشن کم ہو گئی. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس ساری ایکسرسائز کے بعد فائنلی اب دنیا جو ہے وہ دوبارہ سے آرگینک فوڈ کی طرف آ گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ سارے لوگوں نے جب اتنی تیزابی چیزیں کھانی شروع کر دیں تو کوئی بھی فروٹ ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. جی. ایک گلوکوز ہے، ایک فرکٹوز ہے. اچھا. گلوکوز تو باڈی کے اندر جو خرچ ہو گیا، فرکٹوز نے جگر کے اوپر فیٹ چڑھا دی. صحیح. اگر گلوکوز بھی زیادہ ہے باڈی کے اندر چلا گیا تو اس نے بھی گلائکوجن کی صورت میں چربی بن کے جگر یا پیٹ کے اوپر چڑھ جائے گی. صحیح. تو اس لیے کوشش کی حد تک پروسیس فوڈ سے بچنا چاہیے. صحیح. کسی بھی قسم کا ہو، نیچرل فوڈ جتنا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا سبزیاں پکانے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ایک نیچرلی ہم نے لے لی سبزی، مارکیٹ سے آ گئی، ہمارے گھر آ گئی، ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا، واش کر لیا، آپ اس کو پکانے لگے. تو پکانے کا جو پروسیس ہے وہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اس کی غذائیت برقرار سبزی کو اچھے طریقے سے گلانا چاہیے، پکانا چاہیے. صحیح. پکانے کا بہترین جو برتن ہے وہ مٹی کا برتن ہے. ٹھیک ہے. باقی برتنوں سے نقصان پہنچتا ہے. تو مٹی کے برتن کے اندر اس کو پکایا جائے، اور جس وقت صحیح طریقے سے ہلکی حرارت سے وہ پکتا جائے گا اس کی غذائیت محفوظ رہے گی. اچھا مطلب اس کا گلانا مقصود ہے؟ ہاں، اس کو نرم کرنا مقصود ہے. لیکن غذائیت برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہلکی آنچ پہ پکانا چاہیے. تیز آنچ سے بچنا چاہیے. اچھا حکیم صاحب، یہ ذکر چل رہا ہے آرگینک فوڈ کے حوالے سے، تو آپ بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں مطلب ہم لوگ زرعی ملک ہیں، ہمارے ہاں ان چیزوں کی بڑی بہتات ہے. تو سبزیوں کے ذکر ہم کریں تو وہ کون سی ایسی سبزیاں ہیں جن کا استعمال ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے؟ سب سے مفید چیز کدو ہے. اچھا. جو نبی علیہ السلام کو پسند تھا. کوئی بہت پسند تھا. ہاں. کدو، ٹنڈے، توری، گاجر، مولی، شلجم، حلوہ کدو، بند گوبھی، اروی، یہ جو ہمارے یہاں عام سادہ سبزیاں چلتی ہیں یہ بہترین ہے صحت کے لیے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے غذائیت پوری ہو جاتی ہے؟ اس کی غذائیت پوری کرنے کے لیے پھر ہم نے اس کے اندر یہ صرف پیٹ پورا کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، غذائیت کے لیے ہمارے پاس 2 بڑی چیزیں ہیں. یا گوشت ہے یا پھر دیسی گھی ہے. اچھا. پروٹین. پروٹین کسی بھی فارم میں آپ لے سکتے ہیں. جی. تو پروٹین جیسے آپ نے انڈوں کا ذکر کیا تھا، تو پروٹین کا تو ایک بڑا سورس ہے، بہترین سورس ہے. لیکن اس میں زردی کہتے ہیں کہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. نہیں، یہ بھی کچھ لوگوں کے ہاں بات چلی کہ زردی نہیں استعمال ہونی چاہیے. میں نے زردی سمیت انڈے کھلائے ہیں، اور میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں اگر 100 آدمی استعمال کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے 100 کو فائدہ پہنچے گا.
अच्छा, मतलब किसी भी मिजाज का आदमी किसी भी मिजाज का बंदा। सही, मतलब हाँ, कि अगर गर्म चंद- मिजाज का हाँ, है या ठंडा। मेरे पास लोग आए जिनका ब्लड प्रेशर कोई 200 तक पहुंचा हुआ था। हाँ। जब मैंने उनको अंडा लिख के दिया, कहते हैं हमारा हमारा ब्लड ब्लड प्रेशर प्रेशर बढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही। तो ब्लड प्रेशर अंडे की वजह से नहीं बढ़ता, वो बड़ा होता है उसके अंदर हवा गैस रुकी होती है। सही। जिस वक्त हम उसकी हवा गैस का इलाज करते हैं, अंडे से हरारत पैदा होती है, जब हरारत पैदा होती है गैस निकल जाती है। सही। साथ पुदीना तावन करता है, पेट से हवा गैस निकाल देता है। अंडा क्या काम करता है कि ये बाइल साल्ट बनाने में किरदार अदा करता है। सही। जब आपका जिगर हेल्दी होगा वो बाइल साल्ट अच्छे बनाएगा। सही। जब बाइल साल्ट अच्छे बनेंगे वो आंतों में गिरेंगे। सही। आंतों में गिरेंगे तो पेट अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। सही। आपकी कब्ज का इलाज हो जाएगा। हाँ। हवा गैस का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। किसी को बड़ी गैस का मसला है तो ये मेरी बात एक हफ्ता मान के देख ले, हफ्ते बाद यकीनन वो खुश होगा कि अब मेरे पेट की गैस का इलाज होगी। अच्छा, यानी कि जो आपने नाश्ता बताया कि 3 अंडे आपने लेने हैं, उनको देसी घी में फ्राई करना है, उसमें आपने मेथी के पत्ते डालने हैं, पुदीना डाल लेना है, मतलब सब्ज़ अंडे मिर्च में है, सब्ज़ मिर्च डाल लहसुन देनी है, देसी और नमक, कुदरती नमक जो जो हिमालयन नमक पिंक के साल्ट के नाम हाँ, से, पिंक सॉल्ट के नाम जी, से, और इसके कसूरी अलावा मेथी डाल दें। कसूरी मेथी डाल देनी है आपने। ये और 5 मसाले जायकेदार इतना बनता है अच्छा, कि आप वो ये- अंडा खा के देखें दिल करेगा दूसरे दिन अच्छा, अगर वो जो एक और मतलब था, वो होती हैं रोजमेरी बूटी आती है एक हमारे पास, एक हमारे पास वो आता है ऑर्गेनो आता है, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या ला हैं कि क्या इनका इस्तेमाल सही है या नहीं है? मैंने उनका कभी इस्तेमाल ना, किया कभी नाम ही नहीं सुने हमने। अच्छा, सही है। अच्छा हकीम साहब, ये नाश्ता आपने बताया कि इसमें इसके साथ आपने बताया कि कहवा पुदीने का हाँ, इस्तेमाल पुदीने कर का लें, तो इसमें और इसमें जिक्र आपने किया कि ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं सारे ले सकते हैं, अच्छा सारे ले सकते सारे हैं ले इनको। सकते हैं, तो ये इससे कोई नुकसान नहीं कोई नुकसान नहीं होता। शर्त यह है कि उसके साथ पेट भरने के लिए कोई रोटी, कोई चावल, कोई डबल रोटी, कोई बन के, कोई अनाज, कोई पकौड़े, ऐसी चीज़ें साथ ना खाई जाए। सही। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे लोग इस बात को तरजीह देते हैं कि आप किसी भी मेडिसिन के मुतबादिल आप किसी ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है वो सबसे बेहतर है। सबसे पहले इलाज हमें ग़िज़ा से करना चाहिए। अच्छा। अगर ग़िज़ा से काम ना चले तो फिर हमें दवा की तरफ आना चाहिए। अच्छा, ये जो मतलब लाइक हमें किसी मल्टी विटामिन की ज़रूरत है और हम एक टैबलेट खा लेते हैं तो हमारी वो ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो जाती है, नहीं, वो ज़रूर उसके मुतबादिल क्या चीज़ मल्टीविटामिन से कोई ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी नहीं होती। एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है। हाँ। सही काम उस वक्त होगा जब उसके मुतलका पूरी खुराक खाए। मसलन एक आदमी कैल्शियम पूरी करने के लिए कैल्शियम की गोली खाता है। सही। अब गोली का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर उसके मुतबादल एक गिलास दूध पीता है इसका नुकसान नहीं है। ठीक है। ये जुज़्व बदन हो जाएगा। ग़िज़ा और दवा में बोली सीना ने जो फ़र्क लिखा है वो लिखते हैं कि दवा जो इंसान की क़ुव्वत पर असरअंदाज हो, जिस्म की क़ुव्वत पर, और असर करके जिस्म से निकल जाए, और ग़िज़ा वो है जो जिस्म की क़ुव्वत से मुतासर होकर जुज़्व बदन बन जाए। ठीक है। कोई भी दवा दुनिया की जुज़्व बदन नहीं होती। हाँ। क्या होता है वो, मतलब ग़िज़ा होती सारी निकल जाती है, वो सारी निकल जाती है, जो से बदन नहीं बनती। नहीं बनती। अच्छा, इसके मुतबादिल ग़िज़ा कौन कौन सी? इसलिए आप तजवीज़ करते हैं? हमारा तजर्बा ये है कि वो आदमी खुराक से इलाज करता है तो 50% आदमी ठीक हो जाता है खुराक ग़िज़ा से, और 25% दवा का असर होता है। 25% इंसान को मर्ज़ की नौयत समझा दें, उसका नफसियाती इलाज उससे पूरा हो जाता है। अच्छा, तो एक्सरसाइज का इसमें क्या रोल है? एक्सरसाइज बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। मसलन किस तरह का? मसलन आदमी सुबह फजर की नमाज के बाद जब जी। मौसम बेहतरीन होता है, फ़ज़ा साफ़ होती है, उस वक़्त वॉक करें। अच्छा, एक्सरसाइज में बड़ा ज़ोर से मशक्क़त वाला लोग काम करते हैं, कहते हैं कि शायद इससे वज़न कम हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब ज़रा नोट कर लीजिए कि जितनी मर्ज़ी को वर्जिश कर ले वज़न नहीं कम होगा बल्कि वज़न बढ़ेगा। अच्छा। ऐसी वॉक जिसमें दिमाग पे स्ट्रेस ना हो, बड़े इजी माहौल में आदमी चल रहा है और लॉन्ग वॉक कर रहा है, आराम आराम से चल रहा है, ठीक है। इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, कितने किलोमीटर या कितने मिनट ये तकरीबन 4 किलोमीटर बनेगी। वॉक करने का अंदाज क्या होना चाहिए? बिल्कुल रिलैक्स मूड, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदमों के साथ। तेज़ वॉक या? तेज़ वॉक नहीं होनी चाहिए, वर्जिश भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। वो मतलब और कामों के लिए मुफीद हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल ज़िंदगी के लिए जो है वो स्लो वॉक, मतलब स्लो वॉक के बारे में। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, यकीनन इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेना हमें एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। हाजिर होते हैं इस वक्फ़े के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत।
वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के बारे में हकीम मुबश्शिर अली साहब से गुफ्तगू चल रही है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। अच्छा हकीम साहब, आपने ज़िक्र किया, सब्जियों का ज़िक्र हो गया, गोश्त का ज़िक्र हो गया, और इसके बारे में आपने हमें बता दिया कि जी ब्रायलर जो है वो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, रेड मीट की तरफ हम जाएंगे। और रेड मीट जो है उसमें ओबियसली छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब एक बेहतरीन काम यह है कि जो गोश्त हम खाते हैं इसके पकाने का तरीका क्या होना जी 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 जी। अच्छा, बहुत सारे हमारे यहाँ लोग ना कढ़ाई गोश्त बनाने के शौक रखते क्या हैं। बात है। अच्छा, कभी कभार आदमी ऐसा कर ले खास तौर पर जिस वक्त कुछ सर्दी लग रही हो, मौसम ठंडा हो, तो आदमी ऐसी ग़िज़ा खा ले, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, रोस्ट बरोस्ट मटन कढ़ाई खाया जा सकता है। सही। लेकिन इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। सही। मामूल बनाने से क्या होगा कि मैदे में तजाबियत बढ़ जाएगी, खून में फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अब किसी न किसी मर्ज़ में काबू आ सकते हैं। सही। अच्छा, इसके बनाने का एक बेहतरीन तरीका है कि इसको आदमी लगातार इस्तेमाल कर सके, महीनों भी इस्तेमाल करे तो नुकसान ना हो। सही। मसलन अगर हमारे पास बकरे का गोश्त है 1 पाव, उसमें हम पानी डाल दें 2.5 किलो, उसको इतना पकाएं कि पका पका के वो किलो रह जाए। सही। अब जब किलो रह गया तो इसके अंदर थोड़ा सा मसाला ऐसा जिसमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन है, पुदीना है, काला ज़ीरा है, कसूरी मेथी है और कुदरती नमक है, देसी घी डाल के थोड़ा सा इसको तड़का लगा दिया जाए। अब पहले जो यखनी बनी तो उसके अंदर डाल दिए, ये शोरबा बन गया। सही। अब ये पतला सा शोरबा प्याले में डाल के पिए, इसकी बोटियाँ भी खा लें। ये मैंने खिला के देखा है मरीज़ों को, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 9-9 महीने, साल भी इसका कोई नुकसान नहीं होता। सही। लेकिन दूसरे तरीके से जिस तरह लोग खाते हैं कढ़ाई गोश्त के हिसाब से, वो नुकसान करते हैं। अच्छा हकीम साहब, दालों का जिक्र हम करें, कहते हैं कि प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर किसी को गोश्त मुयसर नहीं है तो वो दालों का इस्तेमाल कर सकता है। वो कौन सी दालें हैं? नहीं मतलब डॉक्टर साहब, ये प्रोटीन का ये जो लोगों ने बताया ना कि गोश्त का नेमल बदल है, ये किसी सूरत नेमल बदल नहीं। हाँ, दाल अगर आपने इतनी खाई है तो इतनी ही जिस्म से निकल जाएगी, थोड़ी सी जिस्म में रहेगी। सही। गोश्त आपने इतना खाया तो इतना ही जिस्म में धंस जाएगा, थोड़ा सा फुदला बनेगा। ठीक, बिल्कुल ज़मीन व आसमान का फ़र्क है दोनों में, मतलब फ़र्क है क्योंकि हाँ बिल्कुल फ़र्क है। वो कुदरती प्रोसेस से जो अल्लाह ने उसका किया हुआ है जी, ये गोश्त जो बन के आ रहा है इसको वजूद कबूल करता है। ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से यही कहा ना जी, अल्लाह उनको गोश्त दे रहा था, वो कहने लगा नहीं इस तरह के सौदे चाहिए, दालें चाहिए, तो अल्लाह ने फरमाया कि अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, क्या तुम तबादला चाहते हो अच्छी चीज़ को छोड़कर अदना चीज़ लेने का? अच्छा। तो इसलिए दालें सब्जियां कभी गोश्त करने बहुत बदल नहीं हो सकती। लेकिन आमतौर पर तशहीर तो यही की जाती है ना, मशहूर ये लोगों किया जाता है। आप कोई भी आदमी इसको खा के देख सकता है जी, उसको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा जो गोश्त से फ़ायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हकीम साहब, कौन सी ग़िज़ाएँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, और हम अगर ख़ास तौर पर इस्तेमाल जो है ऐसी खुराक जिसको प्रोसेस किया गया, जिस तरह हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में बड़ी सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, ये डबल रोटी है, ये पिज़्ज़ा है, ये अपना जैम है, जेली है, जितने भी डब्बा बंद जूस, ये सारी चीज़ें आ रही, इसका सेहत के लिए नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं, वाक़ईतन कोई फ़ायदा? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा ये है कि वक्ती तौर पे आदमी खुश हो जाता है, पेट भर जाता है, पेट भर जाता है। सही। सेहत के लिए नुकसान है। हाँ, तो नाश्ते में आपने एक तो वो हमें बता दिया कि हम अंडा 3 मैं खा लें। नाश्ते के लिए बताता हूँ बेहतरीन चीज़ जो हमारे यहाँ चलता है, पराठा। हाँ, अगर कोई आदमी मुशक्क़त करने वाला है, हाँ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है या अच्छे काम कर रहा है, मुशक्क़त वाले काम कर रहा है, उसको सुबह सुबह देसी घी के पराठे खाने चाहिए, लाजमी खाने चाहिए। हाँ, तो सेहतमंद रहेगा। मतलब कहा जाता है कि जी बड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ कोई जाता है। उसको कोलेस्ट्रॉल से कोई गर्त नहीं। आप चेक कर लीजिए, किसी भी मजदूर आदमी को खिला के 3 महीने भी खिला लीजिए, उसकी सेहत अच्छी होगी, कमज़ोर नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे कि आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। एक आदमी वो है जो उसकी मुशक्क़त कोई नहीं, मेरे जैसा उसको बंदा। सादा रोटी खानी चाहिए। अच्छा, अगर मतलब उसका नाश्ते दिल में आप रिकमेंड करते हैं कि रोटी ही खानी चाहिए? रोटी खा, सादा। हालांकि जो देखें जो मुशक्कत नहीं करता उसको अगर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, रोटी खा रहा है, तो वो तो पुट ऑन करेगा, इतनी मिकदार के ऊपर आ जाएंगे जी। एक आदमी की ज़रूरत है कि एक रोटी का चौथा हिस्सा जी वो इतनी इस्तेमाल करे। एक आदमी की ज़रूरत है कि निसफ़ रोटी वो निसफ़ इस्तेमाल करे। एक की ज़रूरत है एक रोटी वो एक इस्तेमाल करे। ये जो काम नहीं करते, फारग रहते हैं सारा दिन, उनका मुशक्क़त वाला काम नहीं, वो 4-4 रोटियां या पराठे या नान खाएंगे, उसके लिए नुकसान, उसके लिए ज़हर बन जाएगा। सही है कि इतना ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा कि एक रोटी जो हमारे यहाँ आम चलती 100 ग्राम की, उसमें तकरीबन 7 चम्मच चीनी बन जाती है।
थोड़ा फॉलो। इतना ग्लूकोज अगर अंदर जाएगा, जबकि हमारे वजूद में जो खून सर्कुलेट हो रहा है 4 से 5 लीटर होता है, उसको सिर्फ 5 ग्राम ग्लूकोज चाहिए होता है। सही। तो जब हम उसको 70 ग्राम ओवरलोड कर देंगे तो वो कहाँ खर्च होगा? वो खर्च नहीं होगा तो उसकी चर्बी बन जाएगी, चर्बी बन जाएगी, वो जिगर पे चढ़ेगी, अंतड़ियों पे आएगी, हिप जॉइंट पे आएगी, आपके सारे जोड़ों को मुतासर करेगी। अच्छा हकीम साहब, इसीलिए आजकल जिस बंदे का भी अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसके लिवर फैटी नजर फैटी लीवर जो है वो आता है, इसका मतलब है कि ज़रूर से ज़्यादा ग़िज़ा खा रहा ग़िज़ा खा रहा है है या इसको सलीका नहीं है खाने का। ठीक है। तो सलीकामंद ग़िज़ा, सलीकामंद मैंने बताई है कि लिवर फैटी का बेहतरीन इलाज जी, कि सुबह जो मैं 3 अंडे बताएं वो खाएं जी, दोपहर को किशमिश बादाम इनर्जेटिक ग़िज़ा है बेहतरीन। अच्छा कितना बादाम और 100 ग्राम किशमिश खा जाए, 100 ग्राम में बादाम खा जाए, इससे भूख मिट जाएगी? बिल्कुल मिट जाती है। पक्की आप बात है? हाँ खा, क्योंकि रोटी के अंदर अगर हम 75 ग्राम ग्लूकोज मिल रहा है तो 100 ग्राम जब किशमिश खाते हैं, ग्लूकोज इसमें भी 75 ग्राम है, सही। लेकिन उसका ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज है, सही। इसके साथ बाकी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब क्या क्या चीज़ें? इसके अंदर बाकी कुदरत ने और चीज़ें रखी हैं, जैसे मैग्नीशियम है और ताकत देने वाली चीज़ें, और ये बाइल साल्ट बनाता है। वो ग्लूकोज है वो बाइल साल्ट नहीं बनाता, वो बलगम बनाता है, वो बलगम बनाता है। ठीक है। इसलिए जब इसके बाइल साल्ट बनेंगे आपका जिगर हेल्दी होगा और वो चर्बी को तहलील करने वाला बन जाता है। आपने किशमिश का जिक्र किया, तो किशमिश की कौन सी सौगी, किस्म? सबज सौगी मीठी जो हम हलवे में डालते हैं, अच्छा। मुख्तलिफ मिठाइयों में डालते हैं, हाँ। तो वो सौगी किशमिश बादाम सब्ज रंग साइज के वाइज मतलब छोटी सबसे छोटी छोटी होती है, सबसे छोटी सबसे छोटी होती है। अच्छा। मीठी होती है, तोशनी होती है। मतलब एक तो बड़ी बड़ी भी मिलती है, बड़ी ग्रीन सी, बड़ा लाइट सा कलर होता है जी उनका। जी। तो वो एक मुट्ठी बराबर वो ग्रीन जो सबज किशमिश वो खा ले, हर आदमी अपनी मुट्ठी के मुताबिक खा ले, ठीक है, और इतने ही बादाम खा जाए। सही है। ये खाने के बाद ऊपर से 1 कप कावा पुदीने वाला, जैसा पहले जिक्र किया था, अच्छा मतलब उसको पानी में दम देकर वो सारा कुछ वो कर पी लिया ले, जाए। और शाम को इसी तरह बकरे का गोश्त जो मैंने जिक्र किया वो खा ले। अब 3 महीने किसी भी बंदे को खिला के चेक कर लें, उसका टोटल लिपिड प्रोफाइल ठीक होगा, हाँ, और उसकी शुगर जितनी भी बढ़ चुकी वो अपने लेवल पे आ जाएगी, ठीक हो गया। उसका लिवर जितना भी फैटी वो ठीक हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, फाइनली मतलब हम एक बात करते हैं कि हम लोगों ने ज़िंदगी में बड़ी बातें तैतालियाँ की, खूब ग़िज़ा खाई, हमारा वेट बढ़ गया, पेट बढ़ गया, वज़न हम लोग ओवर एक्सीडेड कर गए। अगर हम वज़न कम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मुतवाज़न ग़िज़ा, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो क्या होना चाहिए एक मतलब रूटीन में, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुतबादल इस्तेमाल के साथ हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं? हाँ, यही जो डॉक्टर साहब मतलब जिक्र किए ना 3 चीज़ें, सुबह अंडे, दोपहर किशमिश बादाम, शाम को बकरे का गोश्त, ये आपका वज़न बिल्कुल हर महीने आप जितना मर्जी अपने आप को कंट्रोल भी करना चाहें कि वज़न कंट्रोल करूँ नीचे ना जाए, जो चला जाएगा। इसने आपको अपने असल वज़न पे ला के खड़ा करना है, जो आपके कद के हिसाब से वज़न बनता है वहाँ ला के खड़ा करेगा। तो ये आप अगर बिलफर्ज कोई नॉर्मल तरीके से इसको शुरू करता है, महीने में मेरा तजर्बा है 4 से 6 किलो वज़न कम करता जाता है। नहीं, कुछ लोग मेरे कहते पास हैं ऐसे कि लोग नाश्ते हैं में आप जिनके बगैर जर्दी के अंडा खाएं, साथ में 2 ब्राउन ब्रेड लें। हाँ, 2 ब्राउन ब्रेड या अंडे की सफ़ेदी खाने से वज़न बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है? मतलब जितने ट्रेनर हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं, हाँ, आप वो चेक कर सब लीजिए, कहते आप हैं। उनके बंदे चेक कर लीजिए, 100 बंदे अगर बाहर बैठे हैं उनके मरीज़, आप उनको चेक कर लीजिए भी उन्होंने कितना अर्सा ये खाई है और कितना वज़न कम हुआ है। और जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 महीना करके देख लें, महीने बाद वज़न चेक कर लें। 100 बंदों को करवा दे, 100 के वज़न चेक कर लें। अच्छा। अल्लाह के फजल करम से 100 के 100 का वज़न गिरेगा। अच्छा, मर्द हजरात तो बाहर जाकर एक मुशक्क़त करते हैं। मैंने जो चीज़ बताई डॉक्टर साहब, इसमें मशक्क़त वाला काम ही कोई नहीं, कोई वर्जिश नहीं, कोई सैर नहीं, किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, सादा खुराक खाएं और वज़न गिरेगा। अच्छा, मैं पूछने ये लगा था कि आम तौर पर होता ये है कि मर्द हजरात बाहर जाकर मुशक्क़त करते हैं, उनकी ग़िज़ा और ख़वातीन जो घरों में रहती हैं उनकी ग़िज़ा में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मुझे बताएं कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो घर में रहते हुए किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करें कि वो सेहतमंद रहें? हाँ, वो ग़िज़ा मिकदार में थोड़ी हो और ताकतवर हो, जैसे गोश्त है, अंडा है, खजूर है, अंगूर है, ऐसी चीज़ें, और जैतून, उसका तेल भी और उसका फल भी। अपनी सारी महंगी चीज़ें बता रहे हैं आप। नहीं, बड़ी सस्ती चीज़ें। नहीं, कहाँ सस्ती चीज़ें, मैं बताएं कितनी महंगी चीज़ें हैं, कैसे इन चीज़ों से हम अपनी ग़िज़ा को पूरा कर सकते हैं? थोड़ा सा अपने आप को गोश्त 1500 रुपये किलो, हाँ, ऐसे ही है? हाँ, ठीक है, मुझे बताएं कि 1 पाव गोश्त भी लेना हो तो कितने पैसे बनते हैं? 500 की 2 मुर्गियाँ आती हैं, घर में रख ली जाए,
تو انڈے اس سے انشاءاللہ پورے رہیں گے۔ اچھا، آپ نے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا پروگرام پیش کر دیا، بہترین کٹا پال اور مرغی پال پروگرام جو ہے وہ آپ شروع جی کر لیں۔ الحمدللہ۔ تو اگر گھروں میں شہروں میں تو گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، وہاں تو بندوں کے رہنے کی جگہ نہیں، آپ مرغیاں پالنے کے ذکر کر رہے میرے ہیں۔ پاس ایک جوان آیا کہ مجھے نوکری چاہیے، میں نے کہا یار گھر میں مرغیاں رکھ لو۔ اچھا، اس نے ماشاءاللہ مرغیاں رکھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ مہینے کا 30,000 سے زیادہ کما رہا ہے۔ کتنی مرغیاں ان کے پاس؟ 240۔ اچھا کہ صاحب خواتین کی غذا کے بارے میں بات۔ خواتین کی غذا میں کیلشیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں صبح صبح ناشتے میں ان کو 1 پاؤ دہی کا استعمال کرنا چاہیے، ہاں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو جو انرجیٹک فوری طور پہ توانائی دے وہ کھجور کے استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا کتنی کھجوریں عام طور اگر وہ ایسا کر لیں کہ 11 دانے بادام اور 5 عدد کھجور، اگر درمیانے سائز کی، چھوٹی تو 7 کر لیں، اور اس کے ساتھ 1 گلاس دودھ، تینوں کو ملا کے ملک شیک بنا لیں، اچھا یا ویسے کھا کے اوپر سے گلاس دودھ پی لیں، تو ان کے دن بھر کی انرجی پوری ہے، ان کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جسم میں جتنا بھی کام تھکاوٹ، کرنے والی خاتون جتنی بھی گھر میں کام کرنے والی، اگر حاملہ خاتون ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی مقدار زیادہ کرنی پڑے گی۔ دودھ 1 گلاس کے بجائے وہ دن میں 2 دفعہ استعمال کریں۔ یہی مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ اس کا ملک شیک بنا کے پی لے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو وہ کھجور نکال دے، بادام استعمال کرے۔ اچھا حکیم صاحب بتاؤ، عام طور پر آپ نے ذکر کیا خواتین کو واقعی کیلشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں اوبویسلی پروسیس ہوتا ہے بچے کی پیدائش کا، پھر آگے انہیں فیڈنگ کرنی ہوتی ہے، بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ تو دہی کے علاوہ آپ نے ذکر کیا کہ دودھ، اور آپ نے بادام کا ذکر کیا، بادام اور کھجور کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اس سے کیلشیم کی مقدار ان کی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اضافی غذا لینی چاہیے تاکہ ان کی غذا پوری، کیلشیم پورا ہو سکے؟ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غذا میں بلکہ دوا میں کوئی چیز لینا چاہیں تو وہ خمیرہ مروارید ہے۔ اچھا، سچے موتی ان کے بنا ہوا خمیرہ، وہ استعمال کر لیں، اس سے بڑی جلدی پورا ہو جاتا ہے، کیلشیم پورا ہو جائے گا۔ بہترین، اس کا نقصان بھی کوئی۔ اچھا، یہ جو وہ کہا جاتا ہے کہ بچے، یہ پنیر میں، خواتین، مرد، بوڑھے، ہر عمر میں، ہر مزاج میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ پنیر میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنیر کا استعمال فائدہ مند ثابت ہے؟ پنیر بہت فائدہ مند ہے۔ کون سا پنیر استعمال کریں؟ یہی جو اپنا مکھن سے تیار کیا، یہ مطلب مختلف ورائٹیز آتی ہیں نا ان میں، ایک کہتے ہیں چیڈر چیز ہے، نہیں، گھر میں بنا کے، بازار کی پنیر کوئی چیز جس کے اوپر بازار کا پروسیس ہے، اس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی۔ بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بہت ہی فائدہ مند گفتگو جو ہے وہ پہنچائی آپ نے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں غذا اور غذائیت کے بارے میں آپ کو رہنمائی دی گئی، یقیناً آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت۔ آپ کا اور میرا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ صحت ہو پاس، زندہ احساس، رب کی ہے خاص نعمت، وہ ہے صبح و شام۔ صحت ہو پاس، زندہ احساس، رب کی ہے خاص نعمت، وہ ہے صبح و شام۔ ہر ایک کے نام اپنا پیغام، صحت